नेशनल प्रेस डे इसलिए मनाया जाता है, जो हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट को लेके मनाया जाता है। इस दिन में जितने भी जो मीडिया पर्सन है, हम एकजुट होकर सेलिब्रेट करता है टू सेलिब्रेट आवर वर्क, सेलिब्रेट आवर एग्जिस्टेंस एंड सेलिब्रेट द कोर वैल्यू ऑफ फोर्थ स्टेट। सो आज का जो सेलिब्रेशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये टेक अवे ये रहेगा कि वी हैव फेलिसिटेट unsung hero named Ume Taim. He is from Sejusa and Pakistan district. He was he used to be a teacher, and now he's a conservationist. And we acknowledge his work. He has been doing for conservation work of the past 10 years, and he is one of the most sought after tourist guide. So we felicitate him and congratulations to him. And other takeaway I would say is every National Press Day we do uh, acknowledge those outstanding journalists who have been doing a wonderful job in their field. That's award called we instituted awards in 2014, the award called V. Ravindran and Taro Chatong Excellence in Journalism Award, and we have three categories each: human interest story, investigative, and politics and governance. So in 6 categories we have I think we have four winners, because Changmi, Samsung, Changmi, and Yomge Chisi, they won 2 category each. So congratulations to them also. It's a reminder of how our responsibilities should be as journalists and media persons when we do report on the ground. So it's an acknowledgement, I would say. This recognition is an acknowledgement for those people who are passionately following this profession. होता है, जैसे कि उस टॉपिक इशू हो गया, जैसे कि जो पुलिस लोग बोलता है ये मीडिया को, मतलब मीडिया असली मीडिया है ना नकली मीडिया है। नहीं, सी ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है क्योंकि the authenticity of media person, if authenticity of media person, actually it is very unfortunate to see such developments. Why these things are coming up? Because there are so many digital platforms, so many digital media persons, and many of them, sir, I would say, are self-proclaimed media person. So to have authenticate and to have authenticities, and I think one need to follow the basic principle. That's how to report, how to approach someone when you are reporting. Those are the basic tips one has to follow. And this issue, authenticity of media channels, I think it's a high time the government need to come up with a regulatory body. In fact, being an APU's president, and I would agree with this idea, but that regulatory bodies should not compromise, should not erode the basic fundamental principle of press, that we uphold freedom of press, that should not be compromised. But having said that, but I feel it's a high time that we need to identify who is a real journalist and who is not. जैसे कि सर और एक सवाल रहेगा, जैसे कि हम जो मीडिया जो पेनल्टी है उनको, मतलब कि अफूज हो गया, एपीसी हो गया, उन तरफ से मतलब गवर्नमेंट से क्या क्या है सर, थोड़ा बता दीजिए। ये एक बेसिक फैसिलिटीज हमारा यहाँ पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, वी डजंट रिगार्डलेस वेदर दैट पर्सन इज एफिलिएटेड टू अपूज और एपीसी, हमारा मिनिमल बेसिक वो रहता है कि ड्यूटी बनता है कि कोई भी मीडिया पर्सन स्टेट में है या बाहर से भी जैसे आता है। आज ये हमारा एक फ्रेंड है, वो सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड जर्नलिस्ट फ्रॉम द रीजन इन इंडिया। मेक पीस होते भी विजिट किया, वो मेंबरशिप लिया, वो मणिपुर से है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट है। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कोई भी मीडिया पर्सन बाहर से आओ या स्टेट में हो, ये प्रेस क्लब उनका घर है, उनको सर्व करता है, उनको फैसिलिटीज़ जो एक्सेस करना, यहाँ पे लॉज वगैरह है वो रहना, सबका घर है। लेकिन सबका घर डजंट मीन कि एनीवन कैन वॉक इन एंड वॉक आउट, ऐसा भी नहीं होना। यहाँ पे कुछ तौर तरीका है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या ये इस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए उसका वो होता है, ये बेसिक गाइडलाइंस या वो होता रूल्स होता है, उसको फॉलो करेंगे तो सबको फैसिलिटी मिलते हैं। और नंबर 2 मैं ये बताना चाहूँगा, जो वर्किंग जर्नलिस्ट का जो फैसिलिटीज़ है, जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ मैं इसको बताता हूँ। एक हमारा हो गया कि एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ होता है जो एक्रीडिटेड जर्नलिस्ट को मिलता है, वो गवर्नमेंट एकोमोडेशन में आपको सब्सिडाइज रेट में मिलते हैं एट पार विद क्लास ए ऑफिसर। और सेकंड ये है कि हमारा कॉर्पस फंड है,
कॉर्पस फंड में ये है कि वो भी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को मिलते हैं। कॉर्पस फंड आपका लाइफ टाइम में 3 बार अवेल कर सकता है, 1 लाख ईच आप अवेल कर सकता है। वो इमरजेंसी जब होता है, हेल्थ केस में हो या कुछ इमरजेंसी केस में, डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी, मतलब वो उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है। आप उस प्रेसिडेंट का तरफ से वो एक वेरिफिकेशन लेटर जाता है। नंबर 3 ये है पेंशन स्कीम। इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग वन पेंशन स्कीम, जो आज भी जो गवर्नमेंट से हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट इसको जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पेंशन स्कीम इसके लिए निकाला गया है कि स्पेशली दोज हु गिव देयर हार्ट एंड सोल टू दिस स्टेट एंड स्पेंड इंटायर लाइफ इन अ जर्नलिज्म फील्ड्स इन अरुणाचल। 2-3 सीनियर है जो अभी अब तक क्वालिफाइड है। एक मैं कहना चाहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जो हम लोग का पायनियरिंग और फाउंडिंग फादर जैसे वो प्रदीप कुमार बेहरा, वो अभी क्वालिफाइड हो चुका है। जैसे ही ऑफिशियली इम्प्लीमेंट होगा, आई थिंक ही वुड बी द फर्स्ट पेंशनर। अटाट ये है जो अभी CMA वाई जो CM आरोग्य ये जो योजना जो है, ये बेसिकली एक्चुअली आम आदमी सब अरुणाचली को वो अवेल सब अरुणाचली को दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और प्रेस क्लब ने स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को एक ये रिक्वेस्ट डाला है कि हमारा वो जो जर्नलिज्म सेक्टर में जो भी काम करता है वो मीगर अमाउंट में काम करता है, उसका हेल्थ फैसिलिटीज़ और बाकी वो का रेवेन्यू नहीं रहते। तो इसके लिए उसको चलते हम लोगों ने ये फैसिलिटीज़ मांगा कि जो नॉन APST है ये फील्ड में, उनको भी ये जो CMAY का जो बेनिफिट 5 lakhs का जो कवरेज है वो दिया जाए। गवर्नमेंट ने उसको प्रिंसिपली एग्री किया है। आई थिंक इट्स अंडर फाइनल प्रोसेस, मतलब वो होपफुली मतलब विद इन दिसंबर तक इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। और थर्ड, जब आप कहेगा ये मीडिया पर्सन जब बाहर जाते हैं या स्पेशली एयरपोर्ट अगर है या RK मिशन में है, यूनियन ने स्पेशली RK मिशन का अथॉरिटी को ये अपील किया, जब भी जर्नलिस्ट वहाँ RK मिशन वो करता है तो आपका वो टिकट कर ये पार्किंग वो टिकट वो करता है, उससे एग्जाम्प्टेड है। इवन हमारा एयरपोर्ट में एग्जाम्प्टेड है और रेलवे स्टेशन में एग्जाम्प्टेड है। These are the small things we are giving, we are providing benefits to our working journalists who are associated with APUJ और APC। तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि सभी को शुभकामनाएं नेशनल प्रेस डे में। नेशनल प्रेस डे में ये नेशनल प्रेस डे सिर्फ मीडिया पर्सन के लिए सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। लाइक आई सेड कि इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ द इसेंस ऑफ फोर्थ स्टेट डेमोक्रेसी का जो प्रेस को फोर्थ स्टेट माना जाता है, उसका इसेंस से, उसका इम्पोर्टेंस से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड एवरीवन डज बेनिफिट फ्रॉम द इसेंस ऑफ फोर्थ स्टेट। जो डेमोक्रेसी में 4 पिलर, अगर प्रेस का पिलर नहीं होते तो डेमोक्रेसी नहीं कहता है। तो आई थिंक एवरीबॉडी शुड एंजॉय दिस सेलिब्रेशन। थैंक यू सर।